So the next topic is Le-Chatelier's principle. The principle states that whenever a chemical equilibrium is subjected to a stress, do not write. मैं बताऊंगा लिखने को तब लिखना. Whenever a chemical equilibrium is subjected to a stress, stress means what? Stress means change of either concentration or temperature or pressure. तो इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर अगर चेंज करते हैं, then the equilibrium shifts in a direction. There are only two directions available in a direction, either forward shift or backward shift. So there are only two directions available, as I told you, forward and backward shift. So whenever a chemical equilibrium is subjected to a stress is change of concentration, temperature or pressure, then the equilibrium is going to shift in a direction either forward or backward, where it will undo or cancel or nullify the stress. ये सिंपलर लैंग्वेज में मैंने तोड़ के ब्रेक करके तुम्हारे लिए स्टेटमेंट डेवलप किया. ये ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है. नाउ व्हाट वी विल डू इज we will write or we will see the NCERT statement, Le-Chatelier principle. So if a stress is applied to a system in equilibrium, then equilibrium constant is upset, a net reaction occurs in that direction which tends to relieve the external stress, and finally a new equilibrium is attained. लिखेंगे ऐसा, ये स्टेट लिखिए. लिख लिया आपने? No, sir. No, sir. No, sir. हो गया लिखने का काम? Yes, sir. Yes. No. So we move to bigger sheet now. So there are three factors. Number one is effect of concentration. देखेंगे ध्यान से. Effect of concentration. अब आप इसको देखें इस तरीके से. N2 plus 3H2 giving rise to 2 moles of ammonia. इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए हमें? Will that be अमोनिया के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन होल क्यूब. लिखेंगे ऐसा? दे आर ऑल Yes. यस, दे आर ऑल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. अब हम लोग स्ट्रेस की बात करें. लेट अस गो वेरी कैटेगरिकल नाउ. So what is the stress? We increase concentration of either reactant or product. So let us increase concentration of reactant, or more particularly let us increase concentration of nitrogen gas. Nitrogen gas का concentration बढ़ा दिया आपने. So mathematically check करेंगे, अगर नाइट्रोजन गैस का concentration बढ़ रहा है तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. Mathematically Yes, sir. K decrease करेगा. K cannot decrease because K is a function of only and only temperature. So K को पुल बैक करने के लिए तुमको अमोनिया गैस का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा ना.
to pull back K, you are not doing anything, equilibrium अपने आप करा. So to pull back K, ammonia concentration has to be increased, yes, no? Yes, sir. मैथमेटिकली K का वैल्यू डिक्रीज किया है, तो उसके वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए K को दोबारा इंक्रीज करने के लिए अमोनिया गैस का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा ना भाई. तो जब तुमने नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन बाहर से ऐड करके बढ़ाया, तो किस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ गया? अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना. तो जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे ऐसा. दिस इज ऑलवेज ट्रू. दिस इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. दो आई डोंट थिंक कि तुमको किसी प्रिंसिपल की जरूरत है. तुमको पता है अगर इनपुट बढ़ाएंगे हम लोग तो आउटपुट तो बढ़ता है ना भाई. अगर रिएक्टेंट बढ़ाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा ना प्रोडक्ट. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लेन कॉमन सेंस इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो आइदर वे फास्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. लिख लिया. ओके. सो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज डन. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. So let us consider a hypothetical reaction A plus B giving rise to product P and let the reaction be exothermic. ऐसा मान लिया हम लोगों ने. क्या रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ कॉमन सेंस की बातें. जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, वो बैकवर्ड में क्या होगा? Endothermic. Endo. वंडरफुल. बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो जाएगा. दिस इज लैप्लासेस लॉ बोलते हैं. एंडो हो जाएगा. So reaction which is exothermic in one direction is endothermic in the opposite direction. Lavoisier Laplace's law बोलते हैं इसको. Point number 2 is ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है ना. हीट रिलीज होने का Yes. मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. शाबाश. सो ये बात भी क्लियर है. अब तुम चले आओ, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था A plus B giving rise to product P. और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम था. मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. मतलब ये किसी के डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से नीचे है ऐसा मानते हुए. तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाने की कोशिश करेगा? उधर जाने की कोशिश करेगा जहां जाने से टेम्परेचर घटता हो. तुम्हारा स्ट्रेस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द स्ट्रेस? टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना. तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? शिफ्ट करेगा इस तरीके से सो दैट इस स्ट्रेस को अंडू कर पाए. कैंसिल करना है ना इसको. Yes, sir. So which direction the reaction will move to? Will it move to backward direction? Yes. So if we increase temperature and if the reaction type is exothermic, then the reaction shift in which direction? Backward direction. A backward shift is predicted. लिखेंगे ऐसा. So a backward shift is predicted if the temperature is increased, provided the reaction type is exothermic. Do we understand? तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा सर? देन व्हाट हैपेंस? किधर शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम? So forward. फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा. शाबाश. तो शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. कांस्टेंट सेम रहेगा. कांस्टेंट सेम है तो ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डन. हो गया ये. Yes. चेंज कर लो इसको.
Yes, sir. Last is effect of pressure. प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब आप इसको देखें इस तरीके से, रिएक्शन जो है 3 टाइप का होगा। एक N2 प्लस 3H2 गिविंग राइज टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन का डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? -2 है ना। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है, तो -2 हो जाएगा ये। Yes, sir. PCl5 गिविंग राइज टू PCl3 प्लस Cl2, इस रिएक्शन का डेल्टा एन क्या हो जाएगा? विल दैट बी पॉजिटिव? +1 है ना यहाँ पे। +1, yes, sir. And then the third category is H2 plus I2 giving rise to 2HI and the delta N value is 0. 2 minus 2. दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. Okay, right. अब ये इक्विलिब्रियम जो है ये एक एटमॉस्फेयर पे होल्ड कर रहा था और अब प्रेशर को बढ़ा के हमने कर दिया 1.5 एटमॉस्फेयर। सो स्ट्रेस क्या हो गया तुम्हारा? व्हाट इज द स्ट्रेस? Increase in pressure. इंक्रीज इन प्रेशर। सो अंडू कैसे करेंगे? प्रेशर को डिक्रीज करके। Yes, sir. अब आप मुझे एक बात ये बताइए, PV/nRT से क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के? Yes. सो प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स कम होता हो। Number of moles decrease. इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इधर कितने मोल्स हैं? 4 4. मोल्स हैं। इधर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स 2. हैं। नंबर ऑफ मोल्स किधर डिक्रीज हो रहा है? Product side. प्रोडक्ट साइड में। सो प्रेशर डिक्रीज करने के चक्कर में प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा भाई। Forward. तो फॉरवर्ड शिफ्ट इज पॉसिबल, दिखाएंगे ऐसा। बट प्रेशर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड शिफ्ट तभी होता है प्रोवाइडेड द रिएक्शन टाइप इज डेल्टा एन इज नेगेटिव। जरा चेक करें यहाँ पे केस 2 में जब डेल्टा एन पॉजिटिव है, यहाँ चेक करने की कोशिश करें। ये इक्विलिब्रियम फिर से 1 एटमॉस्फेयर पे था, हमने प्रेशर को फिर से बढ़ा के 1.5 एटमॉस्फेयर कर दिया है। सो स्ट्रेस प्रेशर इज इंक्रीज। दिख रहा है आपको? इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जहाँ जाने से प्रेशर घटता हो या नंबर ऑफ मोल्स घटता हो? किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ये? कितने मोल्स हैं इधर? 1 मोल है। इधर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा? Reactant side. सो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। Backward shift. Yes, तो sir. प्रेशर के इंक्रीज करने पे बैकवर्ड शिफ्ट होता है प्रोवाइडेड द डेल्टा एन वैल्यू इज पॉजिटिव। यहाँ आ जाइए आप। एक एटमॉस्फेयर से प्रेशर को फिर से बढ़ा के 1.5 एटमॉस्फेयर कर दिया है। स्ट्रेस फिर से प्रेशर इंक्रीज है। क्या आइडिया तुम्हारे पास? इक्विलिब्रियम को किधर जाना चाहिए? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है। Yes, sir. इधर कितने मोल्स हैं बेटा? 2 मोल्स। 2. इधर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। 2. दोनों साइड बराबर है ना, तो इसके पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो नो शिफ्ट एट ऑल। तो प्रेशर के बढ़ाने से कभी कभी शिफ्ट नहीं भी होता है। किस केस में नहीं होता है? जबकि The डेल्टा एन का delta N वैल्यू is 0. 0। वेरी गुड। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब एक छोटी सी बात और बची रह गई है, इफेक्ट ऑफ, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एज सच ये ली चैटले प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है, बट मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? ये A प्लस बी गिविंग राइज टू प्रोडक्ट P, ये इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश होने में टाइम टेकन टू एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड was 5 hours, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। Now what you do is you add catalyst now. Equilibrium constant was recorded as 5 units. Now you add catalyst. Time taken for equilibrium to be achieved हो सकता है 5 सेकंड में अचीव हो जाए। What happens to the value of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहले वैल्यू k था, k का वैल्यू 5 था, अभी भी 5 रहेगा. So what a catalyst does is at the most it can hasten the approach towards the equilibrium. It cannot change the magnitude of equilibrium constant के. लिखेंगे ऐसा. ये सिर्फ इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के टाइम को कम करता है. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k के वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं करता. So this is the effect of catalyst on a chemical equilibrium. अब इसको आप क्विकली रिवाइज करेंगे और अपना